and welcome to 3A's Academy for English. Today I am again here with a new topic. Like yesterday we had dealt with important usage of can, may, might, all this thing. Today I will be dealing with should have. Where it is used, कब use करना है, कैसे use करना है, all this I am going to deal. And I hope from my previous lectures you are getting the concepts of usage of all these important words जो हमारे regular conversation में use होते हैं. So today I will be dealing with should versus should have. Should चाहिए, जैसे हमने can और could के लिए बहुत सारे possibilities, impossibilities, all this thing, उसी तरह से should and should have का usage है. Should हमेशा keep in mind कि किसी भी चीज को बताने के लिए कि ये चाहिए, it is required, we use should. Should have चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, then we use should have. So पहले हम डील करते हैं should से. Should is used for advice or suggestion. जैसे हम if we are having any problem and discussing with a friend, तो friend आपको बोलेगा कि you should go to a doctor. तो ये advice हुआ, ये suggestion हुआ. So should उसके लिए use होता है किसी को advice देने के लिए या कोई suggestion देने के लिए. Your hair is too long. You should go for haircut. That is an advice, a suggestion. So should हम use करते हैं when we are giving advice or suggestion. Next, situation likely in present. हो भी सकता है, एक ऐसा situation जो हो सकता है in present. So उसका देखिए, Mary should be at home. Give her a call. Present में मेरी अपने घर पे होगी, हो सकती है. So you should give her a call. होनी चाहिए, ठीक है. So any situation likely in present हम should का use करते हैं. तो पहले था advice and suggestion. दूसरा, the next one is situation likely in present. Next, situation likely in future. Situation likely in future. That is talking they should win today. We don't know, prediction. हम predict कर रहे हैं. They should win today as they are good team. क्योंकि वो एक बहुत अच्छी टीम है तो उनको जीतना चाहिए. Future. So should का use होता है for present reference situation के लिए and future situation के लिए which is likely to happen. ठीक है. Next we are coming to should plus have and then V3. मैंने अपने previous lectures में आपको बताया है V1, V2 and V3. तो V3 जब हम use करते हैं that is past participle, तो have का use तब होगा when we are talking subject did not do or act responsibly. That यदि उसको हम सोचते हैं कि इस व्यक्ति को, फॉर एन एग्जाम्पल रमन, उसको ऐसा करना चाहिए था बट उसने ऐसा नहीं किया, तब हम यूज करते हैं should have plus V3. एग्जाम्पल देख लेते हैं. You should have given your boss the report when he asked for it. आपको ये कर लेना चाहिए था, रिपोर्ट दे देना चाहिए था जब आपके बॉस ने आपसे पूछा बट आपने नहीं किया. तब हम यूज करते हैं should plus have plus V3. have के साथ, had के साथ हमेशा V3 लगेगा. ठीक है. तो ये हो गया अपना पास्ट का रेफरेंस. should plus have plus जब ये उस सिचुएशन को बताता है जब सब्जेक्ट जिसके बारे में बोला जा रहा है या जो सब्जेक्ट ऑफ द एक्शन है, he or she did not act responsibly.
जैसे उसको एक्ट करना चाहिए था उसने ऐसा नहीं किया। तो शुड हैव प्लस B3। नेक्स्ट, यदि हम शुड प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, राइटिंग, प्लेइंग, गोइंग, तो बी जहां पे है तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा। तो ये कब हम यूज करते हैं? व्हेन द सब्जेक्ट इज नॉट एक्टिंग सेंसिबली, was not acting sensibly, is not acting sensibly, मतलब अभी जैसा उसका होना चाहिए था एक्ट, वो वैसा नहीं कर रहा है, तब हम यूज करते हैं should प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू शुड बी स्टडिंग फॉर द टेस्ट, यू शुड बी स्टडिंग फॉर द टेस्ट नाउ, भी टेस्ट है कल, टुमारो इज योर एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, वॉट एवर। सो आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए। यू शुड बी प्रिपेयरिंग द लंच, इट्स ऑलरेडी 12, अब क्योंकि 12 बज गया है तो अभी आपको लंच बना लेना चाहिए। इसका मतलब सब्जेक्ट से जो एक्सपेक्टेड है वो वैसा नहीं कर रहा है प्रेजेंट में, तब हम शुड प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म, you should be, he should be, they should be, and then ing form, ठीक है। Now Raman should be wearing his seat belts because he is driving and it is one of the safety measures, it is one of the safety measures that you should wear the seat belt। तो रमन वैसा नहीं कर रहा है, तो प्रेजेंट में he is not acting sensibly, fine। अब हम वी आर कमिंग द यूसेज ऑफ शुड एंड ऑट टू। ऑट टू कभी कभी हम सुन लेते हैं, कभी हम पढ़ लेते हैं, बट इट इज नथिंग बट सेम एज शुड। जैसे हम शुड का यूज करते हैं उसी तरह से वी कैन यूज ऑट टू एंड इट विल नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। यदि शुड को रिप्लेस कर देते हैं ऑट टू से तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, यू ऑट टू स्टडी मोर, इट इज सेम एज यू शुड स्टडी मोर। सिंपली, वेरी इजिली, विदाउट एनी डिफिकल्टी, रिप्लेस शुड बाय ऑट टू, वो आपके सेंटेंस के मीनिंग को चेंज नहीं करेगा। ना शुड के लिए इफ वी आई एम गोइंग फर्दर, कुछ और यूजेस हैं जहां पे हम यूज कर सकते हैं। विद एग्जाम्पल आई एम एक्सप्लेनिंग। जैसे नेसेसिटी, किसी चीज की जरूरत है, आई शुड परचेज अ लैपटॉप, अ कंप्यूटर, आई शुड परचेज एन ओवन, है ना, क्योंकि ओवन की जरूरत है मुझे। तो जहां किसी चीज की जरूरत है, दैट इज नेसेसिटी, देन वी शुड यूज शुड, we should use should, alright। Now blame, if we are blaming someone, if we are blaming someone कि भाई आपके कारण ये room has got messed up, तो you should clean up। so जब हम किसी को blame करते हैं then also should is used। blame हम हमेशा दूसरों को नहीं, हम भी अपने आप को blame करते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है, आई शुड हैव नॉट डन दिस, दैट इज ब्लेम। रिकमेंडेशन होता है कभी कभी, व्हेन यू आर सिक, व्हेन यू नीड समथिंग, तो हम रिकमेंड करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे इंटरव्यू में है, यू आर इन द पैनल ऑफ इंटरव्यूअर्स, तो वहां पे आप यू कैन से दिस, वी शुड कंसीडर दिस कैंडिडेट, क्योंकि उसके क्वालिटीज हैं, the requirements which the company needs उसके पास है, उसकी क्वालिफिकेशन इतनी अच्छी है, तो that is recommendation। दूसरा एग्जाम्पल है, you should install the app, if you are technique savvy then you should have these app, that app, all this thing, है ना। तो इसलिए you should, तो मैंने recommend किया एक ऐप को जो आपको इंस्टॉल कर लेना चाहिए as per your necessity, fine। regret,
जब आपको किसी भी अपने एक्ट का रिग्रेट होता है, तकलीफ होती है, पछतावा होता है, देन ऑल्सो वी यूज शुड. दे शुड अपोलोजाइज. उनको माफी मांग लेनी चाहिए. उनको माफी मांग लेनी चाहिए. They should apologize. So I hope that all this, with these many examples, you are able to connect with me for the important usage. And I request you again, please use these sentences, these words in your conversation. It will help you to enhance your spoken part. Happy learning.